Hello everyone, welcome to CaseWise. The topic of today's video is going to be AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning. And the reason why to make this video is because generally the people or the aspirants who are preparing for UPSC generally perceive AI and ML as one thing. But there's a whole lot of difference between these two topics, and also there are a lot of keywords or terminologies which are related to these modern day computing and modern technology infrastructure. So by the means of this video, what I'm trying to do is to first of all clear the basic difference between AI and ML, that is artificial intelligence and machine learning. And apart from that, all the modern terminologies related to these particular fields of the modern computing, we are going to have a look at them one by one. So I think that by the end of this video, you will for sure be able to read all the current affairs or newspaper cuttings, which I think that you might be getting problem in because of I would say fundamental problems. So without any delay, let's get started. So the first slide, in the very first slide we have artificial intelligence. तो जो सबसे बेसिक पार्ट है that is AI, and I want you to first of all consider 2 to 3 things. The first thing is going to be we will understand everything with the help of an imaginary machine, say M1. So M1 is going to be the name of a particular machine. And number 2 thing, we are going to compare machines with the human intellectual capabilities or the human brain, or how does a human brain works. So we'll find a lot of similarities and we will compare the modern technology terms along with our biological or intellectual terms that we as humans have. So it will become very easy for you to understand and also very easy for me to make you understand. Now the first thing that we have here is artificial intelligence. See, artificial intelligence is the biggest domain. Okay, if you have studied about syllogism or Venn diagrams, then you can see that there is a Venn diagram also on the right hand corner of the screen. So you can see that artificial intelligence is the larger domain. In artificial intelligence, we have machine learning, and in machine learning, we have deep learning. So let's have our first comparison. So artificial intelligence is the computational mimicking of a human brain. It is when we make machines develop their own intellectual brain. So that is known as artificial intelligence. That is the brain. Now, machine learning is the technique or the method that we use to make artificial intelligence. So the names are very much clear. Artificial intelligence means intelligence that is artificial or machine made or based on machine. Now machine learning, you can see that there is a keyword called learning. So how we make artificial intelligence is called as machine learning. How the machine learns, how the machine perceives things to become an artificially intelligent system. It is the way that we call as machine learning. And there are a lot of types, a lot of methods, a lot of attributes to do or to make machine learning. And one of those most popular methods is the deep learning part. Now let me first of all recite a very basic definition of artificial intelligence. So it is going to be simulation of human intelligence by machines, especially computer systems. It enables machines to perform tasks that typically require human intelligence, such as learning, reasoning, problem solving, perception, and language understanding. And the core goal of AI is to create systems that can adapt, improve, and make decisions based on data. So this is also very much implicit and relatable to the human mind. Since the time a child is born, it starts perceiving things. वो एक चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है, एंड टिल अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5 years, बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक इन बायोलॉजी, लेकिन जनरली 5 साल तक की उम्र तक जो है कोई भी एक किड, कोई भी एक बच्चा, वो अपने आसपास की चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स को परसीव करता है, ऑब्जर्व करता है, जिनमें से उसकी मदर उसको क्या बोल रही है, वो क्या एक्शन करती है, जिसके बेसिस पे उसको क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं. फॉर एग्जांपल वो रो रहा होता है और उसको कोई गोद में उठा करके अगर चुप कराता है या उसके सिर पे हाथ सहलाता है, तो उसके बदले में उसको कुछ
किसी तरह का कोई रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल वो दूध हो सकता है, वो खाना हो सकता है, एंड सिमिलरली वो कुछ तरह के एक्शंस करके अपनी बात कन्वे करता है। फॉर एग्जांपल रोना हो सकता है एक प्रॉब्लम का जो है हंगर, वो रो कर ही अपनी हंगर बताता है कि मुझे भूख लग रही है। तो सिमिलर टू दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द ह्यूमन ब्रेन काइंड ऑफ वर्क इन अ सेम वे। The ultimate goal of artificial intelligence is to make machines capable of performing tasks that typically require human intelligence and also to make a decision. एक ultimate decision वो ले सके किसी भी टाइप का, वो हम आगे देखेंगे. So this is what we call as artificial intelligence. And how we make artificial intelligence is going to be the method known as machine learning. Okay. So now we proceed over to the next topic, that is machine learning. Now, machine learning is a subfield of artificial intelligence that we have already discussed upon. Now, this particular method to make artificial intelligence is the most broadly defined. Okay. Now, the ultimate goal of artificial intelligence is to make decisions, and how it becomes able to make decisions is via machine learning. And machine learning has a lot of, I would say, methods that are very technological, that you do not need to study right now. These are specific fields. And why you should listen to me for this particular topic? I am an engineer by profession. I have done my BTech in computer sciences and engineering. Okay. So now let's proceed further. This is the domain. This is the Venn diagram that we have already talked upon. Artificial intelligence is the larger domain, and inside of artificial intelligence we have machine learning, and inside of ML we have DL, that is known as the deep learning. Fine. Okay, now let us proceed. And here you can see some basic set of definitions that set a difference between AI and ML. So the first one is going to be scope. तो AI एक लार्जर डोमेन है, तो इसका ब्रॉड मीनिंग रहेगा, और AI का मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग का है. प्रॉब्लम सॉल्विंग अब ऐसा नहीं है कि मैथमेटिकल स्पेसिफिकली कोई प्रॉब्लम है. एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. फॉर एग्जांपल आपने इमेज दिया, अभी गिबली ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा था, स्टूडियो गिबली वाला, लोग अपनी इमेजेस को पोस्ट कर रहे थे, एंड देन दे वर आस्किंग ChatGPT टू कन्वर्ट देयर फोटोज इनटू अ गिबली स्टाइल ऑफ आर्ट. So that is also a problem for it. By the means of computation, by the means of mathematics, by the means of processing, it is a problem in itself. Because आपने जो उसको इमेज दी है, इमेज इज अल्टीमेटली सेट ऑफ पिक्सल्स, है ना, छोटे छोटे डॉट्स का एक कन्फाइंड एरिया आपने लिया है जिसमें एक पर्टिकुलर कलर कोडिंग है. वो अपने लिए तो एक तरह से आपका पोर्ट्रेट हो सकता है, किसी तरह का ग्रुप फोटो हो सकता है, बट इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर्स वो तो उसके लिए तो सिर्फ इट इज़ अल्टीमेटली स्ट्रीम ऑफ सिग्नल्स ओनली, है ना, डिजिटल सिग्नल्स ही उसके लिए. सो इस पर्टिकुलर केस में ChatGPT के लिए वो जो फोटो आपने दी है वो एक प्रॉब्लम ही है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है कि उसकी कलर कोडिंग आपको पूरा का पूरा चेंज करना है, एक कार्टूनिस्ट वे के अंदर कन्वर्ट करना है. सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम इन इटसेल्फ. सो एवरीथिंग दैट यू पुट ऑन इंटरनेट इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम ओनली. ML का काम नैरो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है. ये एक लार्जर डोमेन के अंदर सब डोमेन है मशीन लर्निंग, तो इसका कंपैरेटिवली नैरो डोमेन है. AI का अल्टीमेट गोल डिसीजन मेकिंग था. ओके, दैट इज़ वेरी क्लियर. ML का अल्टीमेट गोल क्या है? पैटर्न रिकग्निशन करना और प्रिडिक्शन करना. तभी पैटर्न को रिकग्नाइज करके अगर आप कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे तभी तो उसका मतलब इंटेलेक्ट हुआ ना. इंटेलेक्चुअल इंसान अपन किसको कहते हैं? जो एक पैटर्न को देख सके, जो एक प्रॉब्लम को आसानी से इजीली रिकग्नाइज कर सके, उसके फेसेस को देख सके, एंड देन एक सॉल्यूशन निकाल सके, एक प्रिडिक्शन कर सके कि ओके दिस इज़ व्हाट वी शुड बी डूइंग. जो जितना ज़्यादा इस चीज़ को अच्छे से करता है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लीडर और एन इंटेलेक्चुअल पर्सन. नाउ द थर्ड टॉपिक is of data. So AI works both on data and as well as rules. So artificial intelligence works both on rules and data. Here we have rules. That is why there is a lot of concern of privacy. Okay. Now by the rules here, the rules word that is written here is not only human rules or ethical or moral rules, but also the rules of modern day computing or the rules of computers that it has to follow. Whereas in the case of machine learning, it does not has any rules. Why? Because machine learning के टाइम पे humans का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस रहता है. जो डेवलपर है, जो कोडिंग कर रहा है, जो प्रोग्रामर है, वो सारा का सारा खुद रूल सेट करके ही तो उसकी प्रोग्रामिंग कर रहा है. इसलिए मशीन लर्निंग सिर्फ और सिर्फ डेटा पर रिलायंट है. बट इन द केस ऑफ AI, क्योंकि वो एक मॉडल बन चुका है, उसका खुद का एक इंटेलेक्ट है, वो अपने रूल्स के हिसाब से काम करता है. उस केस में एक सिस्टम बनने के बाद में किसी प्रोग्रामर या किसी कोडर के पास में कोई भी तरह का
ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहता. दैट इज़ वाई आई हैव स्पेसिफिकली मैंशनड रूल्स. नाउ द फोर्थ टॉपिक इज गोइंग टू बी ऑफ एग्जाम्पल्स. So the best example of artificial intelligent systems is going to be chatbots. अभी पहले कॉल सेंटर वाले जॉब हुआ करते थे, है ना. देयर यूज टू बी हंड्रेड्स ऑफ रोज वेयर पीपल, men and women both used to sit and hello how may I help you. Those jobs are now totally I think reduced और उन सब की जगह आ चुके हैं चैटबॉट्स. फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऐप्स जितने भी है, आपको बैंक में कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी और तरह के वेंडर्स है, इवन अमेजोन एंड ऑल दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स नाउ हैव चैटबॉट्स टू रिजॉल्व योर क्वेरीज. आपको ऑर्डर के बारे में ट्रैक करना है, सिंपली गो टू द चैटबॉट, है ना. सबके अपने अपने नाम होते हैं, किसी का नाम क्या है, एलेक्सा है, सिरी है, व्हाट्सो एवर दैट इज़. उस पर जाओ, आप अपना क्वेरी डालो और वो इंटेलिजेंटली आपकी सारी डिटेल को ले करके आपको एक वेल डॉक्यूमेंटेड आंसर दे देता है. ना एक्सपर्ट सिस्टम इज समथिंग लाइक दैट ओनली. ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम यू नीड नॉट गो इन टू डिटेल. Now the example of ML is going to be email filtering. For example, जब आप अपनी Gmail या कोई भी email ऐप खोलते हैं तो उसमें कुछ मेल्स जो होती है वो प्रमोशंस कैटेगरी में जाती है, कुछ मेल्स अपडेट्स में जाती है, कुछ ईमेल्स अपने आप ही स्पैम कैटेगरी में जाती है, कुछ आपके इनबॉक्स में दिखती है. ठीक है, सो दैट इज़ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग. ठीक है, रिकमेंडेशन इंजन की अगर हम बात करें तो जब आप किसी चीज़ के बारे में अपने फ़ोन पर सर्च करते हैं बार बार में, तो आफ्टर फ्यू डेज़ और अभी तो मैं बोलूँगा इवन आफ्टर फ्यू आवर्स, या सबसे बेस्ट एग्जांपल इंस्टाग्राम के ऊपर या पिंटरेस्ट के ऊपर जब आप रील स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर नीश पे आप स्क्रॉल करते हैं. फॉर एग्जांपल सम पीपल कॉन्स्टेंटली आर वाचिंग मीम्स, है ना, फ़नी वीडियोस. सो उनके रिकमेंडेशन इंजन में फिर बार बार में फ़नी वीडियोस आती है. या फिर आप गूगल क्रोम पे किसी चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाइक पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स आप सर्च करेंगे तो सडनली यू विल सी दैट यू आर गेटिंग एड्स फॉर दीज मॉडर्न बाइक्स, न्यूली लॉन्च बाइक्स एंड व्हीकल्स, ऑल ऑफ दैट. सो दे आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ मशीन लर्निंग ओनली, जिनको हम रिकमेंडेशन इंजन बोलते हैं. AI के सबसेट में आ जाएगा मशीन लर्निंग. NLP स्टैंड्स फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड CV स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर विजन. ठीक है, मशीन लर्निंग के सबसेट्स के अंदर आ जाएगा डीप लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग. An ultimate goal we have already talked upon. Now on the right hand side of the screen you can see that how does machine learning work. So the first thing, the first circle, the element of flowchart, we will start from the top. Every flowchart starts from the top and goes to the bottom. So the training data we have, हमारे पास में एक डेटा होता है जिसको हमें ट्रेन करना होता है. आफ्टर ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रेन द डेटा. बाय ट्रेनिंग डेटा इट मीन्स दैट डेटा मिसिंग है तो उसको आप यू टेक नोट ऑफ इट. डेटा कैसा है, डेटा को प्री प्रोसेसिंग को चाहिए होता है. फॉर एग्जांपल एक लंबी स्ट्रीम, एक लाइन के अंदर डेटा लिखा हुआ, उसको एक्सेल शीट्स में ऑर्गेनाइज करना. ऑल दीज थिंग्स दैट यू डू ऑन द डेटा इज नोन एज ट्रेनिंग डेटा. आफ्टर दैट देयर इज ए मॉडल, तो आप अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं. वी आर करंटली गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. जो लेफ्ट और राइट वाले पार्ट है उनको आप छोड़िए एक बार. The orange circles, I am on the first orange circle on the top, training data. After training your data, you go to your machine learning algorithm, whatsoever algorithm that you are already chosen to train your machine learning model into. Then after your model is trained or your algorithm is trained, what happens is you put in your process data, है ना. मॉडल इनपुट डेटा जो लिखा हुआ है थर्ड वाले सर्कल में, इट मीन्स दैट आपका मॉडल तैयार हो गया है और आपने जो डेटा को प्रोसेस किया है, डेटा को क्लीन किया है, उसको अब आप अपने मॉडल के ऊपर डालते हो फॉर टेस्टिंग पर्पस. ठीक है, टेस्टिंग होता है. टेस्टिंग करने के बाद में जो ML एल्गोरिदम है, इस जो लास्ट सर्किल है इस पर आप टेस्टिंग करते हो. ठीक है, टेस्टिंग के साथ साथ में आपका मॉडल डेटा जो है आप उसके साथ में करते हो, प्लस आपके पास में एक एडिशनल सेट ऑफ डेटा होता है ताकि आप और दूसरे तरीके से भी उसको चेक कर सको. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू इनपुट डेटा. Now after this testing or during this testing the model starts to do prediction. ठीक है, तो prediction होता है. अब prediction की जो accuracy आती है उसके basis पे आप decide करते हो. For example, if the accuracy is what you were expecting. For example, I was expecting an accuracy of 80%. मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा मॉडल बनाऊँ जो एक स्टॉक की मेरे को प्रोडिक्शन बताए कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी. ठीक है, सपोज करिए कि कोई स्टॉक था वो $1 तक का वेरिएंस दिखा रहा था, $1 ऊपर $1 नीचे. अब मेरे इस मॉडल ने मुझे बताया कि 80% चांसेस तक ये जब कह रहा था कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी वो ऊपर गई, या जब ये कह रहा था कि 80% चांस है कि आज स्टॉक की प्राइस नीचे गिरेगी तो वो गई. इट मीन्स दैट इट इज़ डिजायरेबल टू मी, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू मी. सो दिस इज़ वाई आई विल टर्म इट एज सक्सेसफुल मॉडल. अगर ये नहीं होता है, अनएक्सेप्टेबल रहता है, तो मैं अपने मॉडल को वापस ट्रेन करूँगा. दिस इज़ वेरी सिंपल. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव अ लॉट ऑफ टर्म्स और कीवर्ड्स जिस पे हम बात करेंगे ताकि आपका जो फाउंडेशन है इट इज़ गोइंग टू बी वेरी क्लियर एंड फंडामेंटली यू विल बी एबल टू नाउ रीड और स्टडी
or educate yourself all the topics that you can see in the newspapers or current affairs based on science and technology. अगर अब तक आपको प्रॉब्लम आ रही थी इन सब चीज़ों को समझने के लिए, तो मेरी शायद मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको वो चीज़ें अब समझ में आने लग जाएगी. नाउ द फर्स्ट टर्म दैट वी हैव इज़ न्यूरल नेटवर्क. सी, अभी हमने बात करी थी मशीन लर्निंग के सबसेट के बारे में जिसका नाम था डीप लर्निंग. ठीक है, तो डीप लर्निंग इज़ अ मेथड दैट वी कैन यूज़ टू मेक अ मशीन लर्न समथिंग. To make machine learning, fine. Now neural network is also a way which helps a machine learn something. ठीक है, a machine learning model inspired by the brain's neurons. It is made of layers that process inputs to detect patterns. अब न्यूरल नेटवर्क क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है? क्योंकि न्यूरल नेटवर्क सिमिलर जो अपना ब्रेन के अंदर प्रोसेस होता है. फॉर एग्जांपल, हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स है, वही सिग्नलिंग का काम करती है. आपको कहीं पेन होता है, आपने कहीं चोट लग गई, आपको कहीं चोट लग गई, सपोज आप गैस पे कुछ खाना बना रहे थे और आपका हाथ जल गया थोड़ा सा. सो इमीडिएटली व्हाट हैपेंस इज द न्यूरॉन सेंड सिग्नल जहाँ पे आपका इफेक्टेड एरिया है. फॉर एग्जांपल, उंगली पे अगर चोट लगी है तो उंगली से आपका सिग्नल्स जाते हैं टू ब्रेन. ठीक है, वो लेके कौन जाता है सिग्नल्स? न्यूरॉन लेकर के जाते हैं, है ना. नर्व्स जो है, नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स. तो वो जो नर्व सेल्स है, दे हैव अ वेरी स्लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑन देम. ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक छोटा सा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज फटाफट आपके ब्रेन में जाता है एंड देन ब्रेन सेंड्स इमीडिएट सिग्नल. और वो सिग्नल क्या करता है? आपके हाथ को वहाँ से तुरंत हटवाता है. और पहले आपका हाथ वहाँ से हटता है, देन आपको पेन का या दर्द का एहसास होता है. सिमिलरली ऑन दिस प्रिंसिपल वी डू मशीन लर्निंग विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स. ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी लेयर्स दैट प्रोसेस इनपुट्स टू डिटेक्ट पैटर्न्स. दिस इज़ वाई इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मॉडल. इसको चलाना, इस पे काम करना और इससे काम लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. बट वंस इट इज़ मेड, इट शोज़ वेरी एक्सेप्शनल रिजल्ट्स. और मॉडर्न डे कंप्यूटिंग में न्यूरल नेटवर्क्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एल्गोरिदम. इट इज़ अ वेरी बेसिक टर्म. इवन इफ यू आर नॉट अ टेक्निकल पर्सन, you will certainly know this particular term or might have even once heard this particular term. So algorithm means a step by step procedure or formula for solving a particular problem. एक predefined तरीका, एक predefined set of methods that we have to follow. For example, if you want to make tea, the first thing that you do is take a pan, light the gas, put the pan on the gas, पानी डालो, दूध डालो, चीनी, चाय, जो भी है, there is a particular set of instructions that we have to follow to make tea. This is what we call as algorithm. So the set of instructions that we follow for any particular task, not only computational, not only related to computers, but also in our day-to-day life, is known as algorithm. The good your algorithm is, it will betterly show you accuracy. Simple. The next is going to be types of learning. Why types of learning? This is ultimately the types of machine learning. In how many ways does ML works? How many ways you can teach a machine to learn? So the first thing is going to be supervised learning. See, supervised and unsupervised are both opposite. Third one is a little bit different. That is the reinforcement learning. But it is also very easy. See, now coming on to the first one, it is going to be supervised learning. Supervised learning means जब आपके पास में डेटा लेबल्ड हो. मतलब कि अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ और मैं एक मशीन को ट्रेन कर रहा हूँ टू लर्न समथिंग, तो मैं क्या करूँगा? अपने डेटा को लेबल करूँगा. फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा मशीन डेवलप हो जो मुझे बताए कि इस कलर का नाम क्या है. तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा? मुझे इसको हर एक कलर के बारे में बताना पड़ेगा. आई विल हैव टू अपलोड रेड कलर और फिर टैग लिखना पड़ेगा, लेबल लगाना पड़ेगा कि ओके मशीन M1 दिस इज कलर रेड. ये ऐसा होता है, इसको हम रेड कहते हैं. ये ब्लू है, इसको हम ब्लू कहते हैं. ये कलर ग्रीन है, इसको हम ग्रीन कहते हैं. सो आई विल हैव टू मैनुअली अपलोड एवरी कलर टू इट एंड देन फिर मैं इसको एक रैंडम कलर दूंगा और फिर ये मुझे बताएगी कि ये पर्टिकुलर कलर है. फॉर एग्जाम्पल रेड. दैट इज द केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग वेयर वी हैव लेबल्ड डेटा. जब मैन पर्टिकुलरली डेटा को लेबल करके भेजे कि ओके मशीन दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, नाउ यू टेल मी व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग. अब बदले में वो प्रिंट करके बोले कि दिस इज एक्स और वाई और जेड. दैट इज नोन एज सुपरवाइज लर्निंग. आपने उसको सुपरवाइज किया, आपने उसको एक तरह से टीचर की तरह आपने उसको काम में लिया, टीचर की तरह आपने उसको एक्सप्लेन किया. The second thing is going to be unsupervised learning. Unsupervised learning, totally opposite of supervised learning, where you do not give any label, you just manually upload every color और फिर वो अपने हिसाब से आपको जो है एक
प्रेडिक्शन देना स्टार्ट करे कि ओके आपने मुझे इतने सारे कलर्स दिए तो मैंने एक खुद का क्लासिफिकेशन बना दिया, ये जो चीज़ है जो रेड कलर सा दिखता है आपके लिए, उसको मैंने एक नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल एक नंबर दे दिया 214, रेड को दे दिया। ब्लू कलर जो था आपके लिए, जो ह्यूमंस के लिए ब्लू था, उसको मैंने नंबर दे दिया 215। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, वेयर देयर इज नो सुपरविजन, सो मशीन डज प्रेडिक्शन ऑन इट्स ओन, है ना। अब इसका एक क्लासिक एग्जांपल हो सकता है कस्टमर सेगमेंटेशन, ठीक है। कस्टमर सेगमेंटेशन थोड़ा और इलेबोरेट एक्सप्लेन करूं अगर, तो एक शॉप है आपके पास में, उसमें आपके अलग अलग टाइप्स के कस्टमर आते हैं। सिंपल एक किराना की दुकान समझिए, एक कस्टमर आता है जो रेगुलर बेसिस पे आपसे दूध लेके जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पे। कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो नए होते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे जो सिर्फ रेट पूछ के चले जाते हैं, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनका खाता चलता है। सो अ लॉट ऑफ कस्टमर्स आर देयर, ठीक है। अब उसमें आपको लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई कस्टमर जो नया है, जो पहली बार दुकान पे आया है, हो सकता है कि वो ही आज के बाद में डेली एक पर्टिकुलर टाइम पे आपसे दूध लेने के लिए आ जाए। सो थिंग्स माइट चेंज। कलर्स के केस में तो फिक्स है, रेड विल बी रेड फॉर एवर टिल द टाइम ऑन अर्थ रिमेन्स, ठीक है। बट इन द केस ऑफ कस्टमर सेगमेंटेशन इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है। तो वो कभी भी चेंज हो सकता है। सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू कैन नॉट लेबल एनीथिंग। आप पहले से किसी चीज़ को लेबल नहीं कर सकते। लेबल करने का मतलब है कि वो चीज़ फिक्स हो गई है वहाँ पे। सो दैट इज़ वाई अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ऑल्सो बेनिफिशियल। Now the third thing is going to be reinforcement learning. Now the definition says a type of machine learning where an agent learns to make decisions by getting rewards or penalties. Simply एक बच्चे का केस, ठीक है। A child is sitting in the middle of a room. There is fire burning in one corner. There are candies in one corner. There is a bed in one corner, and there is a pet, be it dog or cat, in one corner. Now what happens is you observe that particular child. First of all, it goes to the corner where the bed is. इट गोज, उसको वो कंफर्टेबल लगता है, वो सो जाता है। सो द चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट व्हाट इज़ दिस बेड एक्चुअली, ये बेड क्या चीज़ है? ये बेड ऐसी चीज़ है जहाँ पे मैं जाता हूँ और मुझे नींद आ जाती है, या ऐसी एक जगह है जहाँ पे जाके मैं सो सकता हूँ। सो इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर हिमसेल्फ और हर सेल्फ, ठीक है। नाउ इट गोज टू द अदर कॉर्नर, देयर आर कैंडीज। सो एज इट गोज एंड रीचेज देयर, ही और शी रियलाइजेज दैट देयर आर कैंडीज। मैं इधर चल के आया तो मुझे कैंडी मिली, मुझे खा के मज़ा आया, सो दैट इज़ अ रिवॉर्ड। नाउ द थर्ड कॉर्नर व्हेन इट गोज इट सीज दैट फायर। वो जैसे जैसे अप्रोच करेगा वैसे वैसे उसको पता चलता जाएगा कि यहाँ पे आगे जाने में खतरा है, बिकॉज हीट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो पता चलेगा नो दिस इज नॉट अ रिवॉर्ड, दिस इज अ पेनल्टी, तो वो वहाँ पे नहीं जाएगा। द फोर्थ कॉर्नर इट विल गो अ पेट और पेट, बी इट कैट और डॉग, नाउ डिपेंड्स। अब उस टाइम पे उस एनिमल का क्या बिहेवियर है वो वहाँ जाकर ही उसे पता चलेगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो आपके मॉडल को आपने खुला छोड़ दिया, मॉडल खुद डिसाइड करेगा, या आप भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे जिस तरह का प्रेडिक्शन चाहिए, अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है तो मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा है। वो रिवॉर्ड किसी भी तरह का हो सकता है, वो एक डिजिटल रिवॉर्ड हो सकता है ना। रिवॉर्ड इट इज़, मशीन को आप क्या रिवॉर्ड दोगे? मशीन को थोड़ी कुछ पता है, आप ही तो पहले उसको बताओगे कि रिवॉर्ड है। ओके, अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जा रही है और मॉडल भी ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी, तो आपने एक ऐसा कोड के अंदर लाइन लिख दी कि ओके, अगर आपने मतलब मशीन ने बोला कि स्टॉक की प्राइस ऊपर जाएगी और स्टॉक की प्राइस एक्चुअली ऊपर गई, तो आपने बोला कि एक फंक्शन डालो ए की वैल्यू बढ़ा देना। द मोर द वैल्यू ऑफ ए बिकम्स द मोर यू विल बी एक्यूरेट। नाउ इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट द मशीन विल सी कि जितनी ए की वैल्यू बढ़ रही है उतना ही मॉडल एक्यूरेट हो रहा है। इट मीन्स दैट इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर इट सेल्फ। और सिमिलरली यही एग्जाम्पल होगा एक पेनल्टी का। नाउ मूविंग अहेड वी हैव लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, LLM, और अभी भी न्यूज़ में है। सी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इज अ सबसेट ऑफ डीप लर्निंग, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, machine learning is a subset of artificial intelligence. Now what a large language model is, it means it is a model trained on huge text datasets to generate human like language. The best and the most classic example of this is going to be the ChatGPT. ChatGPT पे आप इंग्लिश में लिख दो, स्पेनिश में लिख दो, किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, और किसी भी दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप उसका जवाब मांग लो, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में, किसी भी पर्टिकुलर वे के अंदर आप उससे एग्जांपल मांग लो, आंसर मांग लो, इन अ फॉर्म ऑफ ऐसे, इन अ फॉर्म ऑफ इमेज, इन अ फॉर्म ऑफ डिफरेंस टेबल, इन अ फॉर्म ऑफ वीडियो, इन अ फॉर्म ऑफ PPT, स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट, शीट, व्हाट्सएवर यू डिमांड टू इट, ये आपको प्रोवाइड करके देगा, बिकॉज इट इज़ एक्सटेंसिवली ट्रेन्ड ऑन डीप लर्निंग मॉडल दैट इज बेस्ड अपॉन लार्ज लैंग्वेज मॉडल. See, large, you already understand what this adjective means. There is language, which means भाषा. ठीक है, तो इंग्लिश का एक एक चीज़ फ्रॉम अल्फ़ाबेट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट हार्ड टू प्रोनाउंस वर्ड्स,
इसको पता रहेगा. दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज लार्ज लैंग्वेज मॉडल. ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स है, फॉर एग्जाम्पल गूगल, there's Facebook, there's Meta, Twitter, Instagram, they use large language models to train their own systems. ठीक है, वेरी बेसिक, इससे ज़्यादा आपको पता करने की ज़रूरत नहीं है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ LLM इज ChatGPT. Another topic is natural language processing or NLP. Now this is a field of AI that helps machines understand and generate human language. जो LLM पर आप इनपुट देते हो, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मशीन आपकी लैंग्वेज को एज एन इनपुट लेती है. जब उसको आउटपुट देना होगा इट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, है ना. ये NLP का यूज़ करके LLM में जो इसने इनपुट लिया था वो आउटपुट प्रोवाइड करती है. तो जो ChatGPT आपको जवाब देता है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू ChatGPT एंड सर्च फॉर द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिचेस्ट कंट्रीज और टॉप 10 रिचेस्ट ह्यूमंस, जो लिख करके देता है, आपने देखा होगा एक टाइपराइटर वाला टेक्स्ट चलता है. ऐसा नहीं है कि एकदम से टेक्स्ट बना हुआ मिलता है. इट्स यू कैन सी दैट इट इज टाइपिंग अ टेक्स्ट ना, एक एक करके वर्ड्स आपको टाइप होते हुए दिखते हैं, वहाँ पे एक एनिमेशन सी रहती है. सो दैट इज द यूज केस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अ फील्ड ऑफ AI दैट हेल्प्स मशीन्स अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज. मोस्टली जनरेट और अंडरस्टैंड दोनों ही रहता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिफरेंस. To make someone who doesn't has any technical background, we will say that LLMs are used for input and NLPs are used for output. इससे आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. Now of course it is not the most correct and accurate definition or the difference that I have made you understand, but just for the sake of it, just for your first class or computation 101, this is going to work very fine. The next is going to be computer vision. कंप्यूटर विजन, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, इंस्टाग्राम पे रील्स देखी होगी, जिसमें सम पर्सन इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा और कैमरा की फीड अपने को मिलती है. एक वीडियो चल रही होती है जिसमें वो पर्सन अपना हाथ उठाता है, हाथ से कुछ कर रहा होता है, या फिर उसके हाथ पे कुछ डिजिटली आपको लाइंस दिखती है, येलो लाइन फिंगर्स में बनी हुई, या और तरह से. एक अच्छा एग्जांपल हो सकता है इसका फेशियल रिकग्निशन वाला. फॉर एग्जांपल एप्पल इज़ नोन टू हैव द बेस्ट फेस आइडेंटिफिकेशन सर्विसेज, है ना, प्राइवेसी के लिए. तो सारे फ़ोन्स में ही है. सो वो फेशियल रिकग्निशन कर रहे हैं, इट मीन्स आपके फेस को उन्होंने पहले वाया कैमरा स्कैन किया है, आपके कुछ फेशियल फीचर्स को रिकग्नाइज किया. फॉर एग्जांपल द लेंथ ऑफ योर आईब्रोज और आपकी आंखों की साइज़. आप अगर स्पेक्टिकल्स लगाते हैं तो क्या होता है ना, आपकी नोज़ या किसी भी तरह का, जिस भी तरह से वो मॉडल ट्रेन किया गया है, वो सिक्योरिटी फीचर ट्रेन किया गया है, उसने कंप्यूटर विजन का यूज़ किया है. ठीक है, अब कंप्यूटर विजन का और एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है जो ऑनलाइन आजकल चलान होते हैं. ठीक है, रेड लाइट्स के ऊपर या इलेक्ट्रिसिटी पोल्स के ऊपर या डेडिकेटेड पोल्स के ऊपर उन्होंने हाई स्पीड कैमरास लगा के रखे हैं, जो आते जाते इनकमिंग आउटगोइंग व्हीकल्स को स्कैन करते हैं और उनकी नंबर प्लेट पर जूम करके और नंबर कॉपी करके, और ऑटोमेटिकली अगर स्पीड ज़्यादा है या और कोई ट्रैफिक रूल वायलेट हो रहा है तो उस पर बेसिस ऑटोमेटिकली एक चालान डिजिटली भेज दिया जाता है. सो दैट इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर विजन, विच मीन्स दैट आप इनपुट ले रहे हो इमेज को विद द हेल्प ऑफ अ कैमरा एंड देन यू आर प्रोसेसिंग इट. सो दैट इज़ नोन एज कंप्यूटर विजन. दो एग्जाम्पल बताएं, फेशियल रिकग्निशन एंड रोड सेफ्टी. नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एक्शंस. ठीक है, अब प्रेडिक्शन की अपन ने इतनी देर बात करी, तो मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन करता क्या है, किस तरह का प्रेडिक्शन करता है, क्या एक्शन होता है. अब जो प्रेडिक्शन करता है उसी को एक्शन कहते हैं. तो जो मशीन लर्निंग है वो जनरली 3 बेसिक सेट ऑफ एक्शंस कैरी आउट करता है, और भी होते हैं. द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन. ठीक है, मशीन लर्निंग क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर किसी चीज़ को पुट करता है. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला मुझे, जैसे हमने कलर वाले मॉडल की बात करी थी, मैंने उसको लेबल डेटा भेज दिया, दिस इज़ द कलर रेड, दिस इज़ ब्लू, दिस इज़ ग्रीन, दिस इज़ वाइट, दिस इज़ येलो. अब मैंने एक रैंडम इमेज उसको दी कि ओके टेल मी विच कलर इज़ दिस, तो वो क्या करेगा, वो उस कलर को हर एक चीज़ से कंपेयर करेगा. सपोज उसके हाथ में रेड कलर है, वो येलो से कंपेयर करेगा. सो उसके पास रेड है, इनपुट में येलो है, डजेंट मैच, ओके दिस इज़ नॉट अ गुड क्लासिफिकेशन, छोड़ो इसको. नेक्स्ट से कंपेयर करेगा, जैसे ही वो कंपैरिजन मैच होगा, रेड मैचेस रेड, वो बता देगा ओके दिस इज़ योर कलर. ठीक है, ऐसे स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करना है, क्लासीफाई करेगा, ओके दीज आर आर सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन. मुझे यहाँ से खबर मिल रही है, मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, यहाँ पे कुछ और हो रहा है, यहाँ पे इलोन मस्क ने ये स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी सऊदी कंपनी ने ये स्टेटमेंट दी है. ओके बेस्ड ऑन दिस आई वुड से एक कैटेगरी बनी हुई है क्लासिफिकेशन की, स्टॉक प्राइस अप और स्टॉक प्राइस डाउन. क्या इस इन्फॉर्मेशन से मुझे स्टॉक प्राइस ऊपर जाती हुई दिख रही है, येस, ओके क्लासीफाई दैट टू द कैटेगरी विच मीन्स दैट स्टॉक इज गोइंग टू बी अप. ठीक है, स्पैम या नॉट स्पैम, कलर रेड और नॉट कलर, या नॉट रेड कलर और नॉट इवन अ कलर, मैंने नंबर दे दिया उसको तो भी क्लासिफिकेशन तो करना ही पड़ेगा कि दिस इज नॉट इवन अ कलर. तो द फर्स्ट कैटेगरी इज गोइंग टू बी इट इज़ अ कलर और नॉट अ कलर.
ओके अगर कलर है तो देन विच कलर इज दिस, रेड ब्लू येलो व्हाट, रेड भी है तो कौन सा रेड है ना, अलग अलग रेड भी तो अलग अलग होते हैं, लाइट रेड, डार्क रेड, डीप रेड, क्रिम्सन रेड, ऑरेंज रेड, जो भी है अलग अलग कैटेगरीज है. सो देर आर अ लॉट ऑफ क्लासेस. सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी रिग्रेशन. रिग्रेशन मीन्स प्रिडिक्शन, एक्चुअल प्रिडिक्शन. एक मॉडल हो सकता है जो बताए कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे. इट इज़ अ वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन स्टेप. सेकेंड मॉडल रिग्रेशन में क्या होगा, ओके ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वो तो है ही है, ऊपर जाएगी तो कितना जाएगी, वैल्यू प्रोडिक्ट करो. कल स्टॉक प्राइस 2 पैसे ऊपर हुआ, परसों 2 पैसे ऊपर हुआ था, उसके पहले 2 पैसे ऊपर हुआ था, आज प्राइस 1 रुपये 10 पैसे है, तो कल क्या होगी, कल 1 रुपये 12 पैसे होगी, आज भी 2 रुपये बढ़ जाएगा. सो दिस इज द वेरी बेसिक प्रोडिक्शन कॉल्ड एज रिग्रेशन. ठीक है. थर्ड इज गोइंग टू बी क्लस्टरिंग. सिमिलर आइटम्स को एक साथ क्लस्टर करना. फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे एनिमल्स की फोटो भेज दी, दे दी इसको एज एन इनपुट, और मैंने बोला इसको भाई क्लासीफाई कर, इसको क्लस्टर कर, सॉरी क्लासीफाई नहीं क्लस्टर कर. सो बहुत सारे अलग अलग तरीके से क्लस्टर कर सकता है. हो सकता है कि ये 4 लिम्ब वालों को एक क्लस्टर में रख दे, या जिनके कान बड़े उनको एक क्लस्टर में रख दे. कलर के बेसिस पे क्लस्टर हो सकता है, या साइज़ के बेसिस पे क्लस्टर हो सकता है. ठीक है. तो डिपेंड्स ऑन अस है ना, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामर एज वेल, या मशीन को भी आप खुला छोड़ सकते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर करे. So this was all from my side. I have tried to make everything understand in a very simple, very legit and very layman manner. Thank you so much for watching, and if you like this video then please like, share and subscribe this video, and also send it to someone whom you think that is going to get help with the help of this video. Thank you so much for watching, and stay tuned for a lot of videos like that. And also if you want, if you learn my way of teaching and you want me to teach you something on a particular topic, then you can mention it in the comment section. I will for sure try my best to make a video on it with a lot of case studies, and it will going to be very helpful for your answer writing. Thank you so much once again.